ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ سرکاری ملازمین جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور پینشنز کے مسائل کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں. ان سے جانتے ہیں. میں اسپیشل ایجوکیشن سے ریٹائر ہوا ہوں اور میں یہاں پچھلے 30 سال سے رہ رہا ہوں. I9 میں ریزیڈینشیل ویلفیئر سوسائٹی میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. کیونکہ I9 میں 100 بلاک ہے، اس میں 1600 فلیٹ ہیں اور سارے گورنمنٹ ملازم ہیں. تو اور گورنمنٹ ملازمین کی جو مشکلات ہیں بخوبی ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. تو یہ جیسا کہ یہ گورنمنٹ جو اصلاحات کر رہی ہے تو اس میں تو یہ دیکھیں، جو اصلاحات تو ہوتی ہے کو آگے بڑھنے کے لیے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اس میں کٹوتی لگائی جائے. تو جو گورنمنٹ ملازم جو ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے پاس جو ہاسپٹل کا ہے وہ تو چلو، اگر کوئی یا میجر ہو جاتا ہے وہ چیز وہ اس کو ریمبرس ہو جائے گی کیونکہ گورنمنٹ ملازم ہے. لیکن اصل چیز دیکھنے، مہنگائی کا دور ہے اس وقت، ہر چیز مہنگی ہے. اور جو بجائے اس کے وہ باقیوں کی اگر وہ 20% بڑھا رہے ہیں تو ان کی 10% یا 7%. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ انہوں نے اپنا گزارا نہیں کرنا. انہوں نے گورنمنٹ کو پچھلے 35-40 سال دی سروس دی ہے، تو اس کے لحاظ سے تو انہیں تو کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے. پھر یہ آگے انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہوئی تھیں کہ بھئی یہ گورنمنٹ ملازمین کو آگے کوئی مکان ہے، اگر کسی ملازم کو نوکری مل جاتی کسی بچے کو، اس کی اماں یا ابا والدین اس کے گورنمنٹ ملازم ہیں تو پہلے بیٹے کو مل جاتا تھا. اب جی آگے وہ بھی اصلاحات میں کر رہے ہیں کہ وہ آگے رول 20 ہے اس کو ختم کر دیا جائے. رول 20 سے اب اگر ایک گورنمنٹ ملازم ہے، یا تو آپ اسی طرح اس کے حساب سے کٹوتی کریں، جس نے ریٹائر ہو اس وقت اس کو آپ ایک گھر کی کوئی فائل دیں، اس کی گھر کا چابی دیں کہ بھی یہ لیں، آپ وہاں جا کے شفٹ ہو جائیں. یہ تو اب اس کی ساری چیزیں آپ پینشن میں کٹوتی بھی کر رہے ہیں، وہ اصلاحات میں وہ ساری گریجویٹی ختم کر رہے ہیں، اس میں کمی بیشی لا رہے ہیں، پینشن میں کمی بیشی کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ بہتری کرنے کے، یا تو ایسے ہے نا ہاں بھی ٹھیک ہے، جتنے ریٹائر ہوئے اس کو، جو ملازم ریٹائر ہوا چھوٹا ملازم، اس کو ایک چابی دے دی گئی بھی آپ اپنے گھر میں چلے جائیں. اگر وہ گھر میں اگر کسی کو کوئی ڈرائیور کو، نائب قاصد کو یا کسی چھوٹے ملازم کو کوئی نوکری مل گئی ہے، اس کو مکان مل جاتا تھا، اب وہ مکان وہ بھی فیسلٹی ختم کرنے کے کوشش میں ہے، وہ رول 20 ختم کر دیا جائے. تو جو اگر اسی طرح چھوٹے گھر ہیں لوگوں کے اور اس نے اگر 7 کمرہ بنایا ہوا تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کنسٹرکشن بھی نہیں کر سکتے، ریپیئر بھی نہیں کر سکتے. ہاں جی، اس کو اگر کسی نے جس وقت اگر کوئی آدمی ریٹائر ہوا ہے، وہ 17 میں، وہ اے میں یا بی میں رہ رہا ہے، اس کی اگر جاتے ہو اس کی وہ اسی طرح اس کو مکان دے دو اس کے لحاظ سے. اگر اس نے کوئی کمرہ بنا لیا تو اس کو گرانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں. وہ جو بھی آتی گورنمنٹ نہیں، وہ اسی طرح ان چکروں. اور اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بیوروکریٹ ہے تیار کر کے وہ مسودہ دیتے ہیں. ہم اکیلا گورنمنٹ وہ تو آتے ہی، اصل گورنمنٹ چلانے والے تو یہ ہوتے ہیں نا، جو 20 اور 20 سے ابو 21 22 سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، ان کے معاملہ اگر نہ تیار کر کے دیں، انہیں بتائیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تو کیسے کٹوتی ہو. اصل چیز تو یہ ہمارے استعمال ان گورنمنٹ ملازمین سے جو ریٹائر ہوئے ہیں، وہ آخر میں جس وقت ریٹائر ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے. جی سر، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام راجہ محمد ذاکر ہے. اور ڈپارٹمنٹ آپ کا کیا تھا؟ وزارت داخلہ سے جو ہے نا وہ ریٹائر ہوا ہوں ریسنٹلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو میں سال ہوا، اس سے پہلے کی میں بات کرتا ہوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. سیکریٹریٹ ہماری کور کمیٹی تھی، ہم نے احتجاج بھی کیے، سارا کچھ کیا. اس کے نتیجے میں پے اینڈ پینشن کمیشن بنانا. پے اینڈ پینشن کمیشن تقریباً 1.5 سال رہا. اس کے بعد اس نے اپنی ریکمنڈیشن دی. اس ریکمنڈیشن میں انہوں نے صرف جو کٹ لگانے والی تھی اس پہ عمل کیا، باقی جو ڈسکرمنیشن ختم کرنی تھی وہ کرنی تھی اس پہ انہوں نے کوئی مطلب جو اس میں سے اچھی چیزیں تھیں اس کو اگنور کر دیا، بالکل سائڈ پہ کر کے، اور اصلاحات کی طرف آ گئے. عمل کرنا ہے تو اس کی پوری پے اینڈ پینشن کی جو رپورٹ ہے اس پہ عمل کریں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا.
सिर्फ वो जो कट लगाना था या वो इनके अपने फेवर में थी वो चीज़ें कर रही। अच्छा, ये जो कट लगाया ये ग्रेड 18 से नीचे के लोगों पर लगाया, आपका कहने का मकसद ये है, और ऊपर के ग्रेड वालों को नहीं दी? ऊपर वालों को नहीं असर पड़ता ना, उनकी आप पे देखें कितनी है। एक हमने ख़त्म डिस्क्रिमिनेशन जो ख़त्म की थी 1 से 20 तक की थी, उसमें से वो बड़े तो अपना हिस्सा ले गए, 1 से 16 तक रह गए। हालांकि प्रोटेस्ट हमने किया 1 से 16 तक और ग्रेड 4 के ने ज़्यादा किया, लेकिन जब वो लेने की बारी आई तो उसमें से उन्होंने सारा वो उड़ा दिया। उनकी रिपोर्ट है पेंशन की कि इनकी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करें, सारा कुछ ख़त्म करें। उन्होंने वो उस पर कुछ भी नहीं किया और सिर्फ जो अपना कट था ना पेंशन पे वो। अब देखें प्रोटेस्ट हमने किया 1 से 16 तक ने ज़्यादा किया और मुराद ले गए बड़े, उस चीज़ पे उन्होंने अमल करा दिया, लेकिन जो 1 से 16 तक के थे ना उन पे उन्होंने बिल्कुल कोई अमल आपकी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं की जा रही? नहीं की। हालांकि हमने प्रोटेस्ट भी किए, वो फ़ायदा उठा के बड़े और उन्होंने हमारा उसका ये सिला दिया कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो चुप होगी, क्योंकि उन्होंने फ़ायदा ले लिया पेंशन कमीशन से जो। और हमारा ये है कि डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म करें, जो मुतालबा है उसका जो रिज़ल्ट है, जो उसकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक उस पर पूरा अमल करें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? मैडम, मेरा नाम शाह फारूक है और मैं यहाँ से रिटायर हूँ। और जिस तरह हमारे साथियों ने बातें कर दी तो मेरे इससे भी इत्तेफाक है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और फैसिलिटेशन बहुत कम है। जैसे इस तरह मैं एक चीज़ लाता था पहले 8-10 हज़ार में लाता था, आज मैं वो 40 हज़ार में ला रहा हूँ। इसके अलावा जिस तरह ना हमारी मेडिकल फैसिलिटी वही पुरानी है, उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है। वो सिर्फ मुझे मिल रहा है 5,000 समथिंग और मैं हर महीने 10-12 हज़ार की मेडिसिन खा रहा हूँ। तो उस हुकूमत को चाहिए कि वो इस्लाहात में हमें फ़ायदा दें, न कि नुकसान दें। क्योंकि हर रिटायर बंदा जो 60 साल के बाद, जैसे आपने उनसे सुन लिया, तो वो बीमार होते हैं। जैसे मैं खुद शुगर के बीमार हूँ, प्रोस्टेट के बीमार हूँ, दिल के भी कुछ थोड़ा सा मामला है। तो उसको चाहिए हुकूमत को कि इस्लाहात के नाम पर जो इस्लाहात कर रहे हैं हमें नुकसान न दे, हमें कुछ फ़ायदा दे। क्योंकि रिटायर मुलाजिम हो जाते हैं वो, उनके बड़े मसाइल होते हैं, उनके कुछ बच्चे मुलाजिम भी नहीं होते और बड़े काफ़ी सारे मसाइल से, किसी के मकान नहीं है, किसी के घर नहीं, कोई दूर है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे तवज्जो दे, पेंशन में कटौती न करे। क्योंकि बड़े तो खैर उससे बेखबर इसलिए है कि जिस तरह हमारे एक सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, वो तकरीबन हर बोर्ड की कई बोर्डों के वो मेंबर होते हैं और जब वो एक मीटिंग में ले जाते हैं तो लाखों के हिसाब से वो अपने पैसे लेके आते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हमें कुछ फ़ायदा दें नुकसान के बजाय, और उसको चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा सा ये रिटायर मुलाजिमीन सहूलत की ज़िंदगी गुजारें। और ओवरऑल जो जिस तरह से सबने बात की है कि एलीट क्लास को मराद दी जा रही है, उस हिसाब उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर देख लो मैडम, जिस तरह पिछले दिनों एक सेनेटर का बयान आया था मुश्ताक साहब का कि 5 लाख गाड़ियां इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना फ्री में चल रहे हैं। तो आप हिसाब लगाएं दिन का इनका कितना खर्चा होता है। तो अगर उनको कुछ इस तरह जो है ना कम किया जाए या को ख़त्म तो नहीं हो सकते। चलो बात उसकी ज़रूरत भी होते हैं, तो इससे जो ना बड़ा पैदा हो जाएगा। उनकी मुराद तो अपने बहाल है, उनके बच्चों की भी है। आप जाके ना बाज़ार में देख ले तो बाज़ार में सरकारी गाड़ियों हैं, वो किसी मिनिस्टर का ना भतीजा भी उस गाड़ियाँ उठा के लेके आते हैं। किसी के भतीजे, किसी के भांजा है, किसी की बेटी है, जबकि ये कौम का अमानत है, रियासत की अमानत है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, सब परेशान हैं, जो गवर्नमेंट इस्लाहात कर रही है, इस हवाले से जो पेंशनर्स हैं वो तबका पिस रहा है बुरी तरह से और एलीट क्लास हर तरह से फ़ायदे में है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं कोई नूर इसका चैनल का मैं थैंक्सफुल हूँ कि इन्होंने हमें इज़हार ख्याल का मौका दिया। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो सरकारी मुलाजम जो हमने मोर देन 35 ईयर सर्विस हमने की है, जब आदमी रिटायर होने पे आता है तो उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि मैं भी शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं इस चीज़ का। उसने घर भी बनाना है, उसने बच्चों की शादियां भी करनी है, उसने अपने मुस्तकबिल के लिए भी सारे मसाइल उनको भी हल करना है। लेकिन ऐसा जो मुलाजमिन को जो दिया जाता है उस पर रिटायरमेंट पे, वो ऐसा इतना नहीं होता। उससे वो बंदा क्या करेगा, मुझे ये बताएं। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे मरला है वो ये है कि जो यूटिलिटी बिल जो जिस तरह से गवर्नमेंट जो भेज रही है, गैस है, पानी है, बिजली है, हर चीज़ की आप लगा रहे हैं, महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है, तनख्वाहें और पेंशन हमारी ये जिस तरह से ये महंगाई बढ़ी है उस तरह से ये हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, ना हमारी पेंशन बढ़ रही है। और तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा गवर्नमेंट से कि जितना भी हो सकता है
जहाँ पे इनको रिकवरी करनी चाहिए, पैसा रिकवर करना चाहिए, वो जिन लोगों पे टैक्स लगना चाहिए वहाँ पे लगाएं, इंडस्ट्रीज़ पे लगाएं, केपी की साइड पे लगा चले जाएं, या तंबाकू वहाँ पे कितना कुछ हो रहा है वहाँ पे, उस इंडस्ट्री के ऊपर अगर ये लगाएं तो इनका मैं कहता हूँ 1 साल में इनकी रिकवरी सारी पूरी हो जाती है। और जिस तरह से ये भी है कि जब अगर पेंशनर है उसकी फौतगी की सूरत में उसकी बेवा को दी जाती थी पहले, और ताहयात दी जाती थी, और अगर उसका कोई बच्चा माजूर है तो उसको भी मिलती थी, इन्होंने वो स्कीम भी ख़त्म कर दी है। ये मैम ये जो इस्लाहात है ना, ये बंदों के फैसिलिटी उसके फैसिलिटी के लिए होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि उनको उनसे मरा दिए वापस ले लें, ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हुकूमत को ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए इस बात के ऊपर। मैं तो ये कहूँगा कि उनको जितना भी हो सकता है, रिटायर्ड मुलाजम जिसने अपना वक्त सर्विस का उम्र का एक इतना अच्छा हिस्सा गवर्नमेंट को दिया है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कम से कम जब ये रिटायर होने पे आए तो कम से कम इनके सर पे दस्ते शफ़क़त इतना तो रखें कि वो अपने जो मसाइल हैं उनको अच्छी तरीक़े से पूरे कर सके और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा मुनव्वर है। मैं रुका हूँ। मैं क्या कहना चाहेंगे आप इन इस्लाहात के बारे में? ये असलात तो जो कहना क्या है, जो हमारे साथियों ने कहा, मैं इस पे एग्री हूँ, लेकिन पेंशनर बहुत ही मतलब पिसे हुए तबके में आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनके खैर करे। दूसरा एक मेन मसला जो हमारे लिए पेंशनर के लिए है कि हमने 2009 में हमने पैसे जमा कराए थे प्लाट के लिए, जो अभी तक हमें नहीं मिले। हमने पैसे भी पूरे जमा करवा दिए। गवर्नमेंट इस तरफ तो कोई नहीं देखती कि हमें कहती है कि मकान खाली कर दे, जो हमें 15-20 साल हो गए हैं पैसे जमा कराए, वो हमें प्लाट क्यों नहीं दे रहा है। अगर 10 साल पहले प्लाट दिया होता, हम अपना घर बना लेते, वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह बिजली के बिल हैं, गैस के, आज ही गैस का बिल मैं देख रहा था, मेरे घर के गैस की कीमत है 186 रुपीज़ और टोटल बिल है 1000, जिसमें से 400 रुपया मीटर का किराया। ये हमें समझ नहीं आ रही कि हर महीने मीटर का किराया 400 रुपया क्या है। ये टैक्स इतने जो हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि 186 गैस के चार्जेस है, तो 1000 बिल है। तो इसी तरह ये पेंशनर कैसे बर करेंगे। इसी तरह बिजली का बिल है, पानी का बिल है, महंगाई का दौर है जो जैसे जाते हैं। तो ये जो आपने प्लॉट के लिए पैसे जमा करवाए थे, ये तो इस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया कि अभी तक हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? हमने दरखास्तें दी हैं, देते हैं कि जी दें। वो कह रहे हैं कि जी अभी डेवलपमेंट हो रही है, जी देंगे आपको। हमने टोटल पैसे जमा करवा दिए हैं, जो उनकी किस्त बनती थी। टोटल जो उन्होंने अमाउंट रखी थी गवर्नमेंट ने, तकरीबन 3 मिलियन, तो वो हमने जमा करवा दी है। लेकिन अभी तक हमें प्लाट की कोई ऑक्यूपेशन नहीं मिली, ना कोई लेटर दिया है कि जी ये प्लाट नंबर बता दिया कि जी आपका प्लाट नंबर ये है, तो अभी तक हमें कोई प्रॉपर नहीं दिया गया ताकि वो ऑक्यूपेशन हो तो हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें, अपने बच्चों के घर बना सकें। पेंशनर के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि पेंशनर के लिए खुदा का नाम लेके कुछ बेहतर सहूलतें पैदा करें।